Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about Scorpion Ascendant and how the month of June 2022 is going to pan out for the Scorpion Ascendant people. Now Scorpio is an ascendant that is ruled by Mars, but Scorpio is a secretive sign and you will see a lot of people with Scorpion ascendant who are politicians. The reason being, Scorpio ascendant people can keep and reveal secrets at the opportune time. These people by nature are very secretive. They can keep their thoughts hidden for a very long time, and that is the reason if rest of the planets are favoring them, they can make excellent politicians. Now coming to the prediction for the month of June 22, the ascendant lord Mars is passing through the fifth house of creativity. Therefore, people with Scorpion as an ascendant, they will see that they are able to come up with new ideas and their creativity is going to be at peak during this time frame. People who are also in the line of work that are indicated by the fifth house, that is entertainment, artists, sportsmen, and even speculators, they are all going to excel in their line of work in the month of June 22. This is also a good time for people to procreate because Mars is also sitting with Jupiter here and Jupiter is in its own sign. Therefore, people who are planning to have kids from a long time can also succeed during this time frame if they are Scorpion ascendant people. Now, people who are in service or job or people who are looking for a job, this month is not going to be very fruitful for them because the sixth house is ruled by Mars for Scorpion ascendant people, and Mars is stationed in the fifth house. So, sixth house lord stationed in the 12th from sixth, which is fifth, is a negative sign for the job seeker. So, people who are even currently in service and are looking for change in the job will not find any opportunities during the month of June 22. At the same time, this is also an excellent time for students because fifth house lord is stationed in the fifth house in its own sign and is joined by the first house lord. Therefore, all the students who are pursuing knowledge, they will be able to excel in their studies during this time frame. I'll also tell you some of the other dates. 13th to 17th of June is the best time for short term traveling and also to connect with the neighbors and the siblings. 18th to 21st of June is the time frame for the people to spend time at home and enjoy the company of their mother as well as other family members if they are staying with some. 18th June to 12th of July, Venus is going to be stationed in the seventh house. So prior to 18th June, that is from 1st to 17th June, the seventh house lord is going to be stationed in sixth house with Rahu. So this is not a good time frame for getting into fights with the spouse, getting into some kind of a misunderstanding with your spouse because seventh house lord is sitting here with Rahu. So it will create some kind of an illusion prior to 18th of June. But after 18th June up till 12th of July, Venus is going to be stationed in the seventh house, and therefore it will be a good time for the Scorpion ascendant people to spend with their spouses. But remember, for the first 17 days of June, please do not get into any kind of a fight with your spouse. 22nd to 26th of June is also the best time to go for conception if you are aiming to have kids, and at the same time is also a very good time to speculate. So people who are associated with the professions that are related to the fifth house, so if you are professionally into stock market investing or you are an artist or a teacher or entertainment field, anything that is indicated by the fifth house, this is going to be a very good time for you professionally. Now there are also some of the days where a person needs to be very careful during every month. Beginning of the month from 1st to 3rd of June is a time where one needs to be very careful, should not take any big decisions during this time frame. So beginning of the month 1st to 3rd June and the end of the month from 27th to 30th of June. What will happen on 27th of June is that Mars is going to move from your 5th to a 6th house sign, and Mars is the ascendant lord for Scorpio ascendant. First house lord going through sixth house would mean that these people will instigate fights or get into any kind of a fight with other people. See, by nature itself, Scorpion ascendant people are fighters.
They are always looking for a fight and they love a good fight. So ascendant lord passing through the sixth house would mean they will entangle themselves into some kind of a fight. So 27th June, the time when Mars enters into the sixth house, alignment will start to change from them. So 27 to 30th of June is also a time when they need to watch out for your health. Again, ascendant lord passing through sixth, and they should also avoid any kind of a fights during this time frame. So it is kind of a mixed month for Scorpion ascendant people. If you are associated with any of the professions that are related to fifth house, or you are planning to procreate, then it is an excellent time. Otherwise, not getting into a fight with your spouse prior to 18th of June, and watch out for the careful days, 1st, 2nd, 3rd of June and 27 to 30th of June, and you will sail through this month smoothly. So this is all that is there for the Scorpion ascendant for the month of June. If you've liked this video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि जून 2022 का महीना कैसे साबित होगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। और मंगल को वैसे तो हम ऐसा ग्रह कहते हैं जो कि अपने मन की बात नहीं छुपा पाता, लेकिन वृश्चिक लग्न के लोगों में आप देखिए, क्योंकि वृश्चिक जो साइन है वो राशि ही उसको गटर की राशि कहते हैं, बेसिकली अंडरग्राउंड होती है। जैसे बिच्छू आपका हमेशा अंधेरी जगहों पे पाया जाता है या आप उसे हमेशा जमीन के नीचे देखेंगे, उसी तरीके से वृश्चिक लग्न वाले लोग भी अपने विचारों को और अपने मन की बातों को बहुत अच्छे से दबा के रख सकते हैं। तो जितने भी आपको राजनेता दिखेंगे या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि सीक्रेट चीजों से डील करते हैं, क्योंकि अगर आप कालपुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो आपका अष्टम भाव यहाँ पर पड़ता है, जिससे कि फिर से गूढ़ शास्त्र या गूढ़ बातें, जमीन के नीचे की चीजें देखी जाती है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनेता बनते हैं, क्योंकि ये अपने राज को छुपा के रख सकते हैं और उन्हें सही समय पे उजागर भी कर सकते हैं। अभी अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो लग्न स्वामी मंगल आपका 5वें भाव से गुजरेगा। यहाँ पर ये गुरु के साथ बैठेगा और गुरु यहाँ पर खुद की राशि में बैठा हुआ है। ये महीना जितने भी लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, यानी आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, स्पेक्यूलेशन के बिजनेस में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, या टीचर पढ़ाने के काम में भी है, उन सब के लिए बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव से जा रहा है, पंचमेश पंचम भाव में ही बैठा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन उनकी क्रिएटिविटी को एकदम बहुत बढ़ाएगा चढ़ाएगा इस समय में। जो लोग एडवर्टाइजिंग वगैरह की लाइन में हैं वो लोग भी देखेंगे कि नए नए पंच लाइन सोच के निकाल रहे हैं, नए क्रिएटिव कैंपेन्स वो लोग कर पाएंगे इस टाइम पे। तो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसे लोग जो कि शेयर बाजार से संबंधित रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। पैसा भी बनेगा इस समय में, क्योंकि पंचम भाव बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रहा है। ऐसे लोग जो बहुत समय से संतान प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय प्रोक्रिएट करने का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही बैठा है और वो भी गुरु है जो कि संतति का कारक होता है कुंडली में। साथ में लग्न स्वामी का भी बैठना है, ये भी बहुत दोनों शुभ चीजें आप कह सकते हैं। जितने भी लोग सर्विस में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी मंगल 6वें भाव का स्वामी है। तो आप अगर जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो इस महीने में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 6वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हुआ है। तो नौकरी तो नहीं मिलेगी, और जितने भी लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है उनको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव कंडीशन हो जाती है। 6वें भाव का स्वामी 5वें भाव से गुजरना नौकरी के लिहाज से कोई अच्छी चीज नहीं कही जाती। उस उल्टी तरफ अगर उसके आप देखें तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव से ही आप आदान प्रदान विद्या का देखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ने में बहुत मन लगेगा और वो बहुत ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे इस समय के दौरान। 13 से 17 जून के बीच में आप देखेंगे कि आपकी कोई शॉर्ट टर्म का ट्रैवल हो सकता है। आपको कहीं अगर छोटी मोटी जगह घूमने जाना पड़े तो, या फिर आप अपने भाई बहनों के साथ मिलके समय बिता सकते हैं, या अगर आपके पड़ोसियों से साथ आपका उठना बैठना है तो उनके साथ समय बिता सकते हैं। 18 से 21 जून का समय है वो आप घर पे बिताइए अपने मदर के साथ, या जिनके भी फैमिली मेंबर से आपकी बनती है उनके साथ। इस महीने में जून में दो मिक्स्ड तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे जहां तक आपके पति या पत्नी के बारे में संबंध है। 1 जून से 17 जून तक का जो समय है उसमें शुक्र 6वें भाव में बैठा रहेगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सप्तमेश शुक्र होता है, तो सप्तमेश 6वें में जाना यानी सप्तम का निगेशन। तो आपके
पत्नी के साथ या पति के साथ झगड़े में मत उतरिए 17 जून तक, तो क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी के साथ राहु भी बैठा हुआ है, तो ये किसी तरह की गलत फहमी या भ्रम पैदा करने का कोशिश करेगा। अगर आप 18 जून से पहले झगड़े में पड़ते हैं तो 18 जून से पहले तो वाद विवाद से बचिए अपने पति पत्नी या अपने पार्टनर के साथ। 17 जून के बाद 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक शुक्र सप्तम भाव में आज चला जाएगा। तो सप्तमेश सप्तम से ही जब गुजरेगा तो एकदम से आपका पत्नी के साथ माहौल में परिवर्तन आएगा, आपकी बनने लगेगी, बहुत अच्छा समय बीतेगा ये टाइम पे। ये समय स्पाउस के साथ बिताने के लिए बहुत अच्छा है 18 जून से 12 जुलाई। जो 22 से 26 जून का समय है, जैसा मैंने पहले बताया था, जितने भी लोग संतति प्लान करने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए ये काफी अच्छा समय है। और ये सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ भी अच्छा समय रहेगा। सो 22 से 26 जून के बीच में जो लोग स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी पैसा मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। 27 से 30 जून का जो समय है उसमें उनको हेल्थ के बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी जो दिन टोटल जो हैं जिनमें व्यक्ति को केयरफुल रहना पड़ेगा वो बिल्कुल शुरू के महीने में है, यानी 1 2 3 जून को, और फिर 27 28 29 30 जून को है। 26 जून तक मंगल पंचम में बना रहेगा, 27 जून से वो छठवें भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो लग्नेश जब छठवें भाव से गुजरेगा तो व्यक्ति या तो झगड़े मोल लेगा। वृश्चिक लग्न का व्यक्ति वैसे ही झगड़ा करने में उसको मजा आता है। आप देखेंगे बहुत से लोग झगड़ालू स्वभाव के जो होते हैं, क्योंकि मंगल है, मंगल वैसे ही अग्रेसिव प्लैनेट है जो लग्न स्वामी है वो। तो वो छठवें भाव में जाएगा तो व्यक्ति की हेल्थ भी खराब हो सकती है और वो झगड़ों में तो डेफिनेटली उलझेगा। 27 से 30 जून के समय में व्यक्ति को झगड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद में कई बार मारा पीटी भी हो जाती है, तो अच्छे खासे शरीर पे चोट के निशान वो भी सही नहीं लगता। तो ये आपके लिए ओवरऑल महीना है। मिक्स्ड ही बोलूंगा मैं, क्योंकि कुछ अगर आप पंचम भाव से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं या आप क्रिएटिविटी से जुड़ा काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आप कुछ अपने किड्स को प्लान करना चाहते हैं तो। अदरवाइज जो दिन मैंने आपको बोले कि आप अवॉइड कीजिए, झगड़ों में ना पड़े या केयरफुल रहिए, अगर आप उन दिनों को दिमाग में लेके चलते हैं तो आपका ये महीना भी बहुत सुरक्षित रूप से गुजर जाएगा। ये आपका जून 2022 का प्रोडिक्शन था। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।